Okay, so in the previous class we discussed about the do while loop, right? Right now we are going to see the also the concept of the do while loop, but today I am going to use in the do while loop decrement operator. How can I use? So we have to understand how can we use the decrement operator in the while loop, that is the do while loop. We have to understand. So what is the my intention of that today is the code. I have to print my data like 10, 9, 8, 7, 6 and goes up to 1. I have to print to this data 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So I have to go up to 1. So I have to print the data like this way 10 to 1. Yesterday we saw the concept from the 1 to 10, right? But today I am going to reverse concept I am taking here. Okay, so we are and what is the going to see here. हम क्या देख रहे हैं इसमें कि 10 में जब हम 10 से जब 9 पर आ रहे हैं और 9 से जब हम 8 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमें कॉमन दिख रही है कि 1 जो है सभी जगह डिक्रीज कर रहा है, राइट? 10 से जी सर। 1 जी यहाँ सर। डिक्रीज करेगा, 9 से जब 8 पर जाएंगे तो 1 डिक्रीज करेगा, 8 से जब 7 पर जाएंगे तो 1 डिक्रीज करेगा. मीन्स डिक्रीमेंट इज गोइंग ऑन. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर in the do while loop, right? So now I am going to write a code to print to this 10 to 1 number, right? So finally I need a data type as a programmer because I have to tell to that on which data I am working here. So I am going to the say, hey, I am working on integer data type. Okay, right? So now I have to give the name of the variable. सो मैं बोलूँगा कि मुझे एक वेरिएबल का नेम चाहिए जो कि डेटा को होल्ड करे, जो कि स्टार्टिंग डेटा. तो हमने बोला ओके राइट, ए मैं एक वेरिएबल राइट ले रहा हूँ जिस पर कि मेरा स्टार्टिंग जो डेटा है वो स्टोर होगा, मतलब कि जो इनिशियल डेटा है मेरे पास. मीन्स वी हैव टू द गो टू द अंडरस्टैंड टू दिस इनिशियल डेटा दैट इज माई 10 is here. So 10 जो मेरा डेटा है इनिशियल डेटा, I will store here on the A. That means we have to do that. So what I am going to just say, assignment operator we are going to the use and store the 10. That's it. And this is the we are going to say this is the variable initialization concept. That means variable we are going to the initialize. What is the meaning of this variable initialization? In the block we are going to the store some value. So suppose I have the block inside a RAM, that is the A, and in that I store the value is the 10 here. Okay, so now we have to understand to this concept. So how we are going to the work on this moment. Okay, so finally what I am going to do, my intention first I initialize the variable, and second I use the do keyword because here we are going to use do while loop. So do keyword को लेंगे, ओपन करेंगे ब्रेसेस को यहाँ पर और क्लोज करेंगे. लास्ट में हमें वाइल कीवर्ड को राइट करना है, ये ध्यान रखें. और कंडीशन आपको यहाँ पर देनी होगी कि आपको ए को कहाँ तक ले जाना है. ठीक है, सो आप मेरे को बताएं मैं यहाँ पर क्या कंडीशन दूंगा. स्टेटमेंट यहाँ पर मैं क्या कंडीशन राइट करूँ. मुझे ए को 10 से 1 तक ले जाना, तो मेरा जो डेस्टिनेशन है ना, दैट इज द कमिंग टू दिस पॉइंट to that's 1. I have to go on the 1, right? मुझे 10 से 1 तक जाना है, तो मेरा जो लास्ट जो पॉइंट है ये 1, मुझे यहाँ तक जाने के लिए मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन कंडीशन क्या राइट करूँगा. A is smaller than or equal to 10. A is less than equal to 10, right all of you? Yes Yes, or sir. no? Yes or no? Right. So now everybody is sure here. सर. Everybody is sure. Yes, sir. Sure. सर कोई बोल नहीं रहा है मेरे और निशा के अलावा, और कोई नहीं बोल रहा है. Everybody is sure here. रवि रंजन. Everybody, you are sorry. All of you are the stupid person today. This is not less than equal to 10 will be the happen. Okay, will be happen because you are going to 10 to 1. So here will be what will be happen. Value of A is the 10 is initialized. So my condition will be here A greater than equal to 10, like this one, because A is the value is greater than equal to 10, and that is you have to say this is the 1.
सो ए की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 1 तक जाना है. दैट्स दिस इज द कंडीशन. All of you is the still of the person mind is not working. All of you, we have to go to the condition. My first value is a is the 10. I have to go with the 1. So here last condition should be 1, and a value of a is the greater than equal to 1. Yes or no? Remember? Yes. So Yes. now we have to go to this on the point and understand to this. So destination हमने यहाँ पर दे दिया कि जो वैल्यू है a की वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 के इक्वल होनी चाहिए. तो मुझे भाई लास्ट यहाँ तक जाना है, लेकिन स्टार्टअप कहाँ से किया है? 10 से किया है. तो स्टार्टिंग हमने ये 10 दिया हुआ है, लेकिन लास्ट जो कंडीशन हमको यहाँ पर ये देनी है a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? क्योंकि 10 जो है 1 से ग्रेटर होगा, 6 है वो भी 1 से ग्रेटर होगा, राइट? तो वी हैव टू द गिव दिस कंडीशन. ओके, now और यहाँ पे what we have to Yeah. do here, just wait to that moment. We are going to the use the printf function. We are going to the use, and we are going to use the printf function to that, and in that I have to print it. तो हमने क्या बोला कि मॉडुलस टी यूज करेंगे, क्योंकि हम डेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं. तो हमें प्रिंटफ फंक्शन को बताना होगा कि भाई मैं प्रिंटफ फंक्शन को जो यूज कर रहा हूँ वो मेरा जो है इंटीजर टाइप का डेटा है, राइट? तो मैंने डेटा इंटीजर टाइप का यहाँ पर यूज किया हुआ है. तो प्रिंटफ फंक्शन को हमने बता दिया, ठीक है. नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड टू दिस कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पर जब मैंने प्रिंटफ फंक्शन को बताया कि ओके यू आर वर्किंग ऑन द इंटीजर डेटा, फाइनली आई एम गोइंग टू सेपरेट विद द कॉमा, और मैं यहाँ ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराऊंगा. नाउ इट्स अ क्लोज दिस स्टेटमेंट. अब मुझे यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है. क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर जब आप 10 से 1 तक जा रहे हो, राइट? सो यू हैव टू योर 1 वैल्यू इज गोइंग टू द डिक्रीजमेंट. 10 से 9 पर गए तो 1 डिक्रीज हुआ. 9 से जब 8 पर जा रहे हो तो 1 डिक्रीज हो रहा है. 8 से जब 7 पे जा रहे हो तब भी 1 डिक्रीज हो रहा है. 7 से 6 पर जा रहे हो, यहाँ भी आपकी 1 डिक्रीज हो रही है. मतलब आपका जो 1 है वो सभी जगह डिक्रीज हो रहा है. तो मैंने आपको बताया था कि लूप का जो कॉन्सेप्ट था कि अगर सेम थिंग रिपीट होती है ना तो वहाँ पर हम लूप का यूज करेंगे. तो हम लोग यही जो पहला भी लूप देख रहे हैं डू वाइल लूप में, पहले हम वेरिएबल को सेट करेंगे. इनिशियल वैल्यू हमने सेट किया ए की, ठीक है. ए पर बोला कि भाई ए की जो वैल्यू है 10 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमने 10 दिया हुआ है. डू कीवर्ड को यूज किया, ओपनिंग ब्रेसेस दिया. प्रिंटफ फंक्शन का हमने यूज किया है कि स्टेटमेंट को प्रिंट कराओ, वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करो, और मॉडुलस डी का फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है क्योंकि मुझे ये बताना है प्रिंटफ फंक्शन को कि आप किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हो. तो ये ए की वैल्यू प्रिंट करे. तो स्टार्टिंग हमने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर क्लोज किया, वाइल कीवर्ड को हमने लगाया हुआ है, राइट? और ए को मैंने बोला ए जो कंडीशन दिया हुआ है ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि ए जो ए की वैल्यू जब 10 से हम 1 तक जाएंगे तो 10 से 1 तक जाते टाइम में हमारी जितनी भी ए की वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल होगी. तो हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो 1 है. तो यहाँ पर हमने कंडीशन दिया, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक लूप के अंदर का ये जो पार्ट है, ये जो अंदर की जो बॉडी है ना, ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, राइट? सो फाइनली हियर आई एम गोइंग टू सी क्योंकि मुझे अब डिक्रीजमेंट ऑपरेटर यूज करना होगा, तो मैंने बोला ए को डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया. मतलब ए को डिक्रीज कराओ हमेशा, जब जब लूप एग्जीक्यूट होगा दैट टाइम यू हैव टू द डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए, राइट? सो नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड हियर we are giving this just space to this back space to this. Okay, right? Now we are the ready to this and we have to the understand. So I hope this is the value of a is the 10 and it's going to printed order 10 to 9. तो हमारा जो टारगेट था, जो इंटेंशन था इस प्रोजेक्ट का कि हमें 10 से 1 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है. तो देखो ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा. पहले कोड आया ए, यहाँ पहले कंपाइलर स्कैन किया और इंटीजर टाइप का डेटा रखा है, ए की वैल्यू 10 है. तो ए की वैल्यू 10 है, 10 इसने स्कैन किया कंपाइलर ने. ओके, देन यहाँ पर आएगा डू कीवर्ड में आएगा इसको, क्योंकि हमें पता है कि जब कंपाइलर स्कैन करता है तो टॉप टू बॉटम करता है कंपाइलर स्कैन कोड को. सो टॉप से बॉटम स्कैन करते आएगा, ठीक है. तो नाउ अभी क्या करेगा, इसके बाद नीचे वाले कोड में जाएंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस कोड.
सो नाउ कंपाइलर विल बी कम टू दिस कोड, फिर यहाँ पर आएंगी, देन प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर कोड को स्कैन किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला, प्रिंटफ फंक्शन हम लोग सी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें स्क्रीन पर आउटपुट देखना है, राइट। तो हमने बोला मॉडुलस डी इंटीजर टाइप का है और ए की वैल्यू प्रिंट करते, ए की वैल्यू अभी कितनी है, अभी ए की वैल्यू सर 1 है 10 है 10 है। राइट, ए की वैल्यू अभी 10 है, तो वो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू 10, ओके। तो अभी उसने 10 प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट कोड पर गया, ए की वैल्यू को बोला डिक्रीज कराओ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने लगाया हुआ। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको 1 से डिक्रीज कर देगी। तो ए की वैल्यू अभी 10 थी, इसके अभी कितना हो जाएगा इस कोड के बाद, जब कंपाइलर, राइट 9 होगा सर। राइट, कंपाइलर व्हेन स्कैन टू दिस कोड, जब इस कोड को स्कैन करेगा तो 10 के बाद जो ए की जो वैल्यू है ना, 10 से अब कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 तो यहाँ पर ए की वैल्यू अब 9 हो गई, तो अभी प्रिंट नहीं किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी ए की वैल्यू यहाँ पर हुई है 9 होगा क्लियर सर। है। नाउ वी हैव टू द सी, अब यहाँ पर आएगा वाइल कीवर्ड इनमें आया और यहाँ से बोला भाई सर थोड़ा सा आवाज 1 मिनट, आप लोग स्पीकर ऑफ रखिए, सर, आवाज आवाज फंस रहा है। सही, स्पीकर ऑफ रखिए आप, आवाज आएगी। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर कंडीशन चेक होगा कि क्या ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या इक्वल है। अगर कंडीशन ट्रू होगी ना तो उस टाइम क्या होगा कि लूप के अंदर का जो पार्ट कंडीशन ट्रू हुआ, देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वंस टाइम। तो अभी 9 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा 9। तो नेक्स्ट वैल्यू जो प्रिंट करेगी 9 प्रिंट करेगी। देन ए की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ए की वैल्यू डिक्रीज करके अभी कितना हो जाएगी बताइए आप लोग, 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है सर, ट्रू है। ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अगेन सिग्नल लूप के अंदर जाएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी 8 प्रिंट करेगा, यस और नो ऑल ऑफ यू। नाउ अभी ध्यान देंगे कि ए की वैल्यू डिक्रीज कर रहे, अभी ए की वैल्यू 8 हो गई है, तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, राइट मोनू। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू था तो 8 प्रिंट किया, यस और नो मोनू, कैन यू हियर मी। जी सर आवाज थोड़ा सा कट के अभी हाँ सही, जी सर आवाज थोड़ा कट के आ रहा है सर। अभी सही है, सर उसी में बोल रहे हाँ अभी सही है। ओके राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट, सो अभी हमारी ए की वैल्यू 8 है, राइट। अब यहाँ पर ए डिक्रीज करेगा तो 8 से अभी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। यस सर। यहाँ पर ए की वैल्यू 7 हो गई, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड टू द ए की वैल्यू अभी हमारी 7 हुई है। सो नाउ 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, यस जी सर। सर। सो 7 प्रिंट करेगा, तो हमारी कोड में अभी 7 प्रिंट किया। तो अब ए की वैल्यू 7 है, क्योंकि हमारा जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो अगेन जो है लूप इसके अंदर जाकर ये वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब प्रिंटफ फंक्शन अगेन एग्जीक्यूट होगा। तो अभी ए की वैल्यू 6, जब 7 प्रिंट करेगा तो ए की वैल्यू डिक्रीज करेगी ना उसके बाद, राइट। यस सर। ए की वैल्यू डिक्रीज करेगी। नाउ द 6 greater than equal to 1, condition is true, once again True. printed a statement of value of a that will print the 6, right. So now this one will be printed up to 1, yes or no, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Yes, 1. sir. Now I am coming on the 1, when is 1 is printed by this printf statement, then the value of a is decreasing, yes or no, the value sir. of a will be the decrease, and now it's becoming 0, the value of a is becoming 0, yes or no. नो Yes, sir. सर। Now 0 greater than equal to 1, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन इज फॉल्स, लूप विल Yes, sir. स्टॉप हियर, लूप यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा और सिग्नल जो है बैक टू द Back. ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सिग्नल यहाँ से बैक टू कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा जब ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होते रहेगा। मीन्स सिंपल वर्ड्स,
until or unless your loop body will be the execute when condition is going to the true. Once the condition is false, your loop will be the stop and signal will be transferred to the operating system. Yes or no, all of you? So I hope to the all up to the getting to this point, and thank you to watching Yes, to this sir. section.